Very good morning, children. How are you all? Welcome to the Sisti classroom. कैसे हैं आप सभी बच्चों? I hope you all are fine and studying properly. पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. Children, we are studying and we are discussing about the book history. History book हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, our past one. So in this particular book, we are studying the chapter 9, Vital Villages in Thriving Town. Vital Villages and Thriving Town. So, where I had discussed with you yesterday up to the craft and craft person as well as the Arika Medu. So almost I had completed you with this chapter. ठीक है? ये chapter मैंने आपका complete कर दिया है. Now the exercises part. What I have to discuss with you in today's video is the exercises part. Okay, from the NCERT book. After discussing about the exercises part, around now the 3 chapters are left only. Traders, kings and pilgrims, new empires and kingdom. ठीक है? एंड बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. Okay. So in the terms of the exercise, first of all I should write down the chapter name. Chapter 9, Vital Villages or Thriving Town. Vital Villages and Thriving Towns. Vital Villages and Thriving Town. एक्सरसाइज करवा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले आपकी बुक में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स. क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज डैश वाज अ वर्ड used for large dash was a word used for large landowners in Tamil. Dash was a word used for large landowners in Tamil. Question number B. The Gram Bhojan often got his land cultivated by the dash. Question number C. Bluff men were known as dash in Tamil. Question number D. Most Grihapatis were dash. So आपकी बुक में एनसीईआरटी में बेटा ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं अंडर द फिल इन द ब्लैंक. ठीक है,
So obviously I am solving the paper through the video, so there is no need to open your book also. So from here, when you open this video and write down the questions and their answers. Okay. So फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि यूज होता है लार्ज लैंड ओनर्स के लिए तमिल में? तमिल की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न की बात नहीं कर रहे हैं, साउथ की बात कर रहे हैं। तो तमिल में बड़े से जो लैंड ओनर्स होते थे, लार्ज लैंड ओनर, जैसे नॉर्दर्न पार्ट में लार्ज लैंड ओनर्स को ग्राम भोजक कहते थे, सिमिलरली तमिल में लार्ज लैंड ओनर्स को वेलालर कहते थे। वेलालर, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे, VELLALAR। नाउ ग्राम भोजक जो थे ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय, जो ग्राम भोजक सबसे बड़े लैंड ओनर होते थे नॉर्दर्न पार्ट में, वो अपनी जमीन को किससे कल्टिवेटेड करवाते थे, मतलब अपनी जमीन पे किससे फार्मिंग करवाते थे, किससे सिंचाई करवाते थे? तो दे गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द slaves and workers, slaves and workers। Ploughman were known as, ploughman, प्लफिंग जो करते हैं उसको प्लफमैन कहा जाता है, उनको तमिल में क्या कहा जाता था? तो दे वर नोन एज उजहावर। उजहावर, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे, UZ उज HAVA, उजहावर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट गृहपतिज वर, जितने भी ये गृहपतिज क्या थे, ये ग्राम भोजक के बाद आते हैं गृहपतिज। ये गृहपतिज कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स जो होते हैं नॉर्थ पार्ट में, जिनकी अपनी खुद की ज़मीनें होती हैं, तो उनको हम कहते हैं, बहुत बड़े ज़मींदार तो नहीं होते बट खुद की ज़मीनें होती हैं, उन्हें गृहपतिज कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द गृहपतिज वर स्मॉलर, कम थे, वर स्मॉलर। So these are the answer of this question, children. Please note it down. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और better you write down the answer A, Vellalar, answer B, slaves and worker, answer C, Ujhavar, and answer D, smaller. Done? Should I rub the board? Okay, so I'm going to rub the board. So first part यानी fill in the blanks was done of this particular chapter. Okay, so filling the blanks is done. Now moving to the next question, and question number 1 we have discussed over. Question number 1 is discussed. Now the question number 2. Question number 2 is describe the functions of the ग्राम भोजक। Describe the functions of the ग्राम भोजक. Why do you think he was powerful? So basically there were 2 questions in 1 question. Question number, describe the function of the ग्राम भोजक. Why do you think, क्यों आपको लगता है, why do you think he was powerful? वो पावरफुल था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसमें जो फर्स्ट में पूछा गया आंसर लिखेंगे। तो हेडिंग आपकी रहेगी फंक्शंस, द फंक्शंस ऑफ द ग्राम भोजक। The function of the ग्राम भोजक are as follow. ठीक है, सबसे पहला
in the northern part of India, the village headman नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो विलेज हेडमैन यानी विलेज का जो मुखिया होता था उसे हम ग्राम भोजक कहते थे. वॉज नोन एज द ग्राम भोजक. Was known as the Gram Bhojak. This is the first point. Second point, questions. I am going to run the question with the hope कि question आपने लिख लिया होगा as it is written in your book also. B point. He used to collect the taxes from the village. He used to collect taxes from the village. यही था जो कि गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करता था फ्रॉम द विलेज राजा के परमिशन से, बाय द ऑर्डर ऑफ द किंग, बाय द ऑर्डर ऑफ द किंग. सो ये दो मेन फंक्शन हो गए इसके, A, B. C. Next main function. He also functioned as a judge. He also functioned as a judge. जज की तरह वो काम करता है. And sometime as a policeman. And एक पॉइंट डिलीट कर रहे हैं कि आपने लिख लिया होगा. एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन. नेक्स्ट फंक्शन. सो 3 फंक्शन आई हैव डिस्कस विद यू. नेक्स्ट फंक्शन. He owned a very large piece of land. He owned a very large, बहुत बड़ी जमीन उसके पास होती थी. He owned a very large piece of land. He owned a very large piece of land and got it cultivated by his slaves, अपने मजदूरों से, स्लेव्स एंड हायर्ड, जिसको भी उसने हायर किया रखा है उन वर्कर से, हर किसी से नहीं, जिसको उसने रखा हुआ है. सो ये 4 मेन फंक्शन है किसके, ग्राम भोजक के. तो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. द सेकेंड पार्ट इज व्हाई ही वॉज अ पावरफुल मैन. व्हाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल. तो इसे लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में भी आराम से आप स्लोली लिख सकते हैं. चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे. व्हाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल. आपको क्यों लगता है कि वो बहुत ही बलशाली या शक्तिशाली था. व्हाई डू यू थिंक ही वॉज पावरफुल. सो लिखेंगे ग्राम भोजता was a powerful man. Because a point, he was
सॉरी नॉट ही वॉज, हिज पोस्ट वॉज, क्योंकि जो उसका पोस्ट था वो हेरिडिटरी था, इसलिए भी वो पावरफुल था, क्योंकि जो उसके जो वंशज है वही उन चीज़ों को चला रहे हैं, कोई बाहर से आके तो उस पोजीशन को नहीं ले सकता, इसलिए भी वो पावरफुल था। हिज पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, हेरिडिटरी। नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली usually men from the same family held the position for generation, held the position from generation. B part. He was generally the लार्जेस्ट लैंड ओनर, सबसे बड़ा जमींदार था, सबसे बड़ा जमींदार होने की वजह से भी वो पावरफुल था। ही वॉज जनरली द लार्जेस्ट लैंड ओनर। सी, ही हैड वर्कर्स हु कल्टीवेट हिज लैंड, उसके पास वर्कर्स थे, इसलिए वो दूसरों से काम कराता था, वो खुद नहीं करता था। ही हैड वर्कर्स हु कल्टीवेट हिज लैंड, जो उसके जमीन को कल्टीवेट करते थे। ठीक है, the above two lines I am erasing. D part. और जो पावरफुल था, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो राजा था वो उसकी मदद लेता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो ये भी एक पावरफुल चीज है। He was powerful. The king often used him to. He was powerful. As king often used him, and as king often used him to collect taxes from the village. विलेजेस देख सकते हो। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए। आई रब इट ऑल द पॉइंट्स जो आपने जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लिया होगा। देन और क्यों वो पावरफुल था? क्योंकि वही था जो कि जज की तरह फंक्शन करता था। ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज और एज अ पुलिसमैन। तो उस जगह पे क्या था ना, उस गांव में पुलिसमैन और जज की जरूरत नहीं पड़ती थी। देयर इज नो नीड ऑफ जज एंड पुलिसमैन। जो ग्राम भोजक था वो खुद ही ये सारे रोल्स इनैक्ट करता था, तो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ जज और पुलिसमैन। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स भी नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द 2 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड, आई क्लीन द बोर्ड मैंने क्लीन कर दिया। एज द 2 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द
क्राफ्ट पर्सन, मैं आंसर लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज। आपको उन क्राफ्ट पर्सन के नाम बताने हैं जो गांव में भी थे और शहरों में भी थे। वेरी इजी क्वेश्चन ना। आपको क्राफ्ट पर्सन के नाम बताने हैं जो गांव में भी थे और शहरों में भी थे। तो आप हेडिंग डालेंगे द लिस्ट ऑफ क्राफ्ट पर्सन हु हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटी इज, फिर पॉइंट लिखेंगे कौन कौन थे जो कि प्रेजेंट थे। गोल्ड स्मिथ, जैसे हम कहते हैं सुनार, सुनार गांव में भी रहते हैं शहर में भी हैं। ब्लैक स्मिथ, जिसे हम कहते हैं लोहार। वीवर्स यानी बुनकर, जो बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं। कारपेंटर्स, जो लकड़ियों से उनका काम होता है, कारपेंटर्स। बढ़ई, जिसे आप कहते हैं हिंदी में, सुनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई। परफ्यूमर्स, जो परफ्यूम बनाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोफेशन जो हैं वो सिटीज में भी हैं और विलेजेस में भी हैं। गार्लैंड मेकर यानी माली, गार्लैंड मेकर्स। बास्केट मेकर्स, ये सब क्राफ्ट पर्सन है जो दोनों जगह मिलते हैं। बास्केट मेकर्स, बास्केट बनाते हैं फूलों के लिए, रखने के लिए सुंदर सुंदर। स्टैचू मेकर, स्टैचू बनाता है जो। तो ये 8 ऐसे क्राफ्ट पर्सन हैं, लिस्ट है, जो कि प्रेजेंट हैं विलेजेस में भी और सिटीज में भी। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इसे। इफ इट इज नोट डाउन देन वी शुड मूव फॉरवर्ड। Okay, I hope it is done. So the question number 3 is also completed from your NCERT. Now the question number 4. ये आपका MCQ क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर है। आपके बुक में ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर। जो रिंग वेल्स थे उनका यूज किसके लिए होता था? नहाने के लिए, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए, इरिगेशन, सिंचाई के लिए, या ड्रेनेज के लिए। तो आपने इसका आंसर पढ़ा हुआ है, आप बता सकते हो इसके आंसर को। सो ऑब्वियसली द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप कह सकते हो फर्स्ट का जो आंसर है वो ड्रेनेज है। ठीक है, जो रिंग वेल्स बने होते थे वो यूज होते थे ड्रेनेज के लिए, जो गार्बेज हैं उन सारी चीजों के लिए, रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच मार्क्ड कॉइन, पढ़ाया ना मैंने कॉइन में। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड अप ऑफ, वो किससे बने होते थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन किससे बने होते थे? बहुत जल्दी आंसर आएगा आप सभी के पास, आई नो। ऑप्शंस हैं सिल्वर, गोल्ड, टिन, आइवरी। पंच मार्क कॉइन किससे बने होते थे? गोल्ड के, सोने के थे, टिन से बने होते थे, या आइवरी बने होते थे? तो वो थे सिल्वर, इसीलिए सिल्वर कॉइन्स भी बोलते थे ना, पहले सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं, सिल्वर के बने होते थे, चांदी। पंच मार्क कॉइन, उसमें पंच किया जाता था इसलिए उसको पंच मार्क कॉइन बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मथुरा वॉज इम्पॉर्टेंट
मथुरा जो सिटी है वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है विलेज की वजह से, क्योंकि वो एक गांव है, पोर्ट है वो एक, या रिलीजियस सेंटर है, या फॉरेस्ट एरिया है। सो ऑब्वियसली द आंसर इज रिलीजियस सेंटर। पढ़ाया आप सभी को रिलीजियस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4 इन एमसीक्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज श्राइन्स वर एसोसिएशन ऑफ। जो श्राइन है वो एसोसिएशन किसका है? रूलर्स का, क्राफ्ट पर्सन का, फार्मर्स का, या हर्डर्स का? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्राइन जो एसोसिएशन है, हमने बताया भी था, वो एसोसिएशन है क्राफ्ट पर्सन का। ठीक है, सारे क्राफ्ट पर्सन ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया था और उस एसोसिएशन का नाम रखा गया था श्राइन। तो श्राइन जो है वो एसोसिएशन है किसका? क्राफ्ट पर्सन का। ठीक है, तो इस तरह से आंसर है ड्रेनेज, सिल्वर, रिलीजियस सेंटर एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 एमसीक्यू, फोर्थ जो था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो फोर्थ पार्ट हमने कवर कर लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। 5th पार्ट है विच ऑफ द आयरन टूल शोन ऑन पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 में कौन से आयरन टूल्स आपको दिखते हैं? 87 पे आपको मैंने देखोगे कुछ टूल्स दिए हुए हैं। पूछा है वुड हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, कौन सा टूल जो है इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, एंड व्हाट वुड द अदर टूल्स हैव बीन यूज फॉर, उसमें और भी जो टूल्स हैं उनका यूज क्या होता है? तो आयरन टूल्स शोन ऑन पेज नंबर 87 आर, तो आप आंसर लिखिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। लिखेंगे द आयरन टूल्स that are shown on page number 87. The iron tool that are shown on page number 87 are, कौन से टूल हैं? वो टूल हैं सिकल, टॉन्स एंड एक्स। 3 हैं, सिकल, टॉन्स एंड एक्स। कुल्हाड़ी है, सरसी है। ठीक है, द वन दैट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, आप इसी में लिखेंगे, फुल स्टॉप, द वन दैट हैव बीन यूज्ड फॉर agriculture, the one that have been used for agriculture were sickle and axe। ये दो चीज का ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज होता है, सिकल एंड एक्स का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो 3 चीजों की मेंशन है आपको, सिकल, टॉन्ग और एक्स, जिसमें से सिकल और एक्स का यूज एग्रीकल्चर में ज्यादा होता है। टॉन्ग का यूज होता है, टॉन्ग जिसे सरसी कहते हैं हिंदी में। टॉन्ग वुड हैव बीन यूज्ड टू होल्ड थिंग, सामान पकड़ने के लिए, जिसको आप हाथ से नहीं पकड़ सकते हो। Tongs would have been used to hold things without actually touching them, उनको बिना छुए हुए, without actually touching them। ठीक है, टॉन्ग वो होता है
है जिसको आप, जो ऐसा सामान जिसको आप ऐसे टच नहीं कर सकते हो, तो उसको हम टॉन के थ्रू टच करते हैं. ठीक है. सो अप टू दिस क्वेश्चन नंबर चिल्ड्रन आई हैव डिस्कस विद यू. फाइन. Next question I will discuss with you in the next video. Thank you.